Okay, now let us see some reaction which proves acidic nature of terminal alkynes. Now the first reaction is reaction with sodium in liquid ammonia. Basically sodium ammonia से react करके NaNH2 सोडा अमाइड बनाता है which is a strong base. तो बेस से अगर कोई, या सोडियम भी बेसिक नेचर का ही है, तो अगर बेस से, फॉर एग्जाम्पल बेस से अगर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो वी विल कॉल इट एज एसिड डेफिनेटली. अगर HCl सोडियम से रिएक्ट करेगा तो HCl एसिड है ही, तो ही सोडियम से रिएक्ट करेगा. HCl कैन ऑल्सो रिएक्ट विद NaNH2 क्योंकि HCl एसिड है तो इट रिएक्ट्स विद अ बेस. सिमिलरली इफ टर्मिनल अल्काइन के अंदर इफ यू एड अ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दैट इज NaNH2, तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर will shift on this carbon, H plus will be released. This H plus goes to NH2 to form ammonia और Na plus यहाँ पर आ जाएगा and it forms RC triple bond C minus Na plus, a salt called as sodium alkanide plus ammonia will be released. For example, if I take this acetylene, NaNH2 डाला 1 mole, तो it will form HC triple bond C minus Na plus. एक और एक NH2 आएगा तो ये भी रिप्लेस कर देगा क्योंकि ये भी टर्मिनल है. So you will get Na plus C minus triple bond C minus Na plus. Disodium. This will be sodium acetanilide. Okay, and this will be disodium acetylide. Now the next reaction which proves the acidic nature is the reaction of alkynes with Tollens reagent. Now question is, what is Tollens reagent? So Tollens reagent is the ammonical silver nitrate solution. मतलब if you take AgNO3 reacts with ammonium hydroxide, AgNO3 silver nitrate, ammonium hydroxide, it will give you a complex. This complex is called as Tollens reagent. AgNH3 twice OH minus, called as Tollens reagent. अगर Tollens reagent का मुझे actual IUPAC name लिखना है तो actual IUPAC name of Tollens reagent is diamine. Amine for ammonia. Diamine means two ammonia. Silver. सिल्वर पे चार्ज क्या है? +1. इसके लिए 1 और outside the bracket there is OH minus. So hydroxide. Diamine silver 1 hydroxide. This is Tollens reagent. Now when you react Tollens reagent with terminal alkyne, this H will be replaced by Ag plus. So you get a structure RC triple bond CAG plus 2 ammonia will be released plus this H plus goes to OH minus ions to form what? H2O. तो सिल्वर अल्कालाइड बन जाएगा, white PPT. अगर white PPT आ गया तो it proves that this alkyne is acidic because it is reacting with the Tollens reagent. अब सपोज मैंने एसिटिलीन लिया and added excess amount of Tollens reagent, तो दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे. So you will get a structure AgC triple bond CAG plus 4 moles of ammonia plus 2 moles of H2O. Again disilver acetylide, white PPT. अब इसमें यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है जो टर्मिनल कार्बन से अटैच है, यहाँ पर अटैच है तो सिर्फ यही रिप्लेस होगा. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3C triple bond CAG प्लस NH3 प्लस H2O. तो ये रिएक्शन भी प्रूफ करता है कि alkynes are acidic since Tollens reagent is basic in nature. Then next is reaction which proves the acidic nature is reaction with ammonical cuprous chloride. Cuprous का मतलब होता है Cu का चार्ज +1 है और cupric means Cu +2 है. तो when cuprous chloride is added to NH4OH, यहाँ पर आपने AgNO3 ऐड किया था, यहाँ पर cuprous chloride ऐड करोगे, so you get this structure CuNH3 twice plus OH minus, diamine copper 1 hydroxide. सिल्वर 1 था, copper 1 hydroxide. Okay, this is called as ammonical cuprous chloride. Again टर्मिनल में डाला, टर्मिनल हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे? Cu से. H goes to OH, so you get a structure of RC triple bond CCU plus 2 moles of NH3 plus 2 moles plus H2O. Now this is called as copper alkalide which is red in color. तो अगर red PPT फॉर्म हो रहा है क्यूप्रस अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ऐड करने से, मतलब इट हैज अ टर्मिनल अल्काइन या तो इट हैज अ अल्काइन विच इज एसिडिक इन नेचर. अब जैसे अब 2 मोल्स लिया तो दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे, तो यू गेट Cu C triple bond CCU plus 4 moles of NH3 plus 2 moles of H2O. Again red PPT. बट याद रखना
This copper complex or silver complex, copper acetylide, silver acetylide, can be converted into normal acetylene on reacting with mineral acid like HCl HNO3. इससे रिएक्ट करोगे कॉपर और Ag अपनी जगह से रिप्लेस हो जाएगा, H आ जाएगा एसिड में से, you get a salt of copper and silver plus acetylene. So you can get back the acetylene once after the reaction is over. Now next reaction is addition reaction, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. फर्स्ट एडिशन रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं अल्केन्स में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्काइंस टू गेट एन अल्केन बाय यूजिंग रैन निकल, प्लैटिनियम, पैलाडियम. या तो हम लोग ने अल्कीन्स में देखा था जहाँ पर अल्काइंस में आप लिंडलास कैटलिस्ट और ब्रिज रिडक्शन यूज कर रहे थे, वे दे आर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट या दे पॉइजनिंग एजेंट, PDCaCO3, वेर अल्काइन स्टॉप्स इन अल्कीन, लिंडलास गिव 6 प्रोडक्ट एंड ब्रिज रिडक्शन गिव ट्रांस प्रोडक्ट. दैट इज डन. एडिशन ऑफ हैलोजन अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड. जब आप डबल बॉन्ड में हैलोजन ऐड करते हो वो आपको विसिनल डाइहैलाइड देता है, लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड में आप हैलोजन ऐड करोगे, डबल बॉन्ड में इट गिव्स विसिनल डाइहैलाइड. आपने देखा है वो रिएक्शन C डबल बॉन्ड C प्लस X2 गिव CH2CX. बट ट्रिपल बॉन्ड रिक्वायर्स 2 मोल. फर्स्ट मोल में X दोनों जगह पे ऐड होगा, ट्रिपल का डबल होगा. बट याद रखना ये जो ऐड होने वाला है X वो ट्रांस फॉर्म में होता है, बिकॉज ट्रांस इज मोर स्टेबल. फिर X ऐड करोगे, फिर से अलग अलग बॉन्ड पे होगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यू गेट अ टेट्राहैलाइड इन दिस केस. और याद है आपको टेट्राहैलाइड से वापस ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो जिंक, अल्कोहलिक जिंक ऐड कर दो. रिवर्स रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है. एसिटिलीन विथ Cl2, तो फर्स्ट स्टेप में आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा CCl डबल बॉन्ड C ClH, बिकॉज ट्रांस इज मोर स्टेबल. फिर उसके बाद में वापस क्लोरीन ऐड करोगे तो टेट्राहैलाइड HCCl सिंगल बॉन्ड C ClHCl. सेम गोज विद द प्रोपाइन. ट्रांस प्रोडक्ट पहले बनेगा, ब्रोमीन ऐड किया आपने, ब्रोमीन लिक्विड, वाटर नहीं, ब्रोमीन लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड होता है ब्रोमीन लिक्विड. सो यू गेट CH3C Br डबल बॉन्ड C BrH ट्रांस प्रोडक्ट. फिर ब्रोमीन ऐड होगा तो यू गेट CH3C Br C Br टेट्राहैलाइड, वो भी एडजेसेंट टेट्राहैलाइड विसिनल. बट रिमेंबर ब्रोमीन के 2 टाइप होते हैं, लिक्विड ब्रोमीन एंड ब्रोमीन वाटर. Now, if you take a liquid bromine, you will get a tetrahalide from here. That is, acetylene लिया, उसमें liquid bromine ऐड किया, तो you get tetrahalide. Bromine, bromine, bromine and H. This is tetrahalide. But वही acid में bromine water डाला, तो you will get only dihalide, but trans product. BrCH, double bond C, H and Br, बिकॉज ये थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म होता है, ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म होता है. रिमेंबर दैट, क्या लिखा है वो देखना जरूरी है. आयोडीन रिएक्ट्स वेरी स्लोली टू गिव ओनली डाइहैलाइड. तो आयोडीन अगर अल्कोहल पे रिएक्ट करोगे, प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, दोनों आयोडीन रिएक्ट करेंगे, यू गेट अ प्रोडक्ट ICH डबल बॉन्ड C INH. उससे ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज रिएक्शन ऑफ आयोडीन इज वेरी स्लो. सबसे फास्ट क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. वो भी ब्रोमीन में 2 फॉर्म है याद रखने का, लिक्विड ब्रोमीन एंड bromine water. Next is, remember that alkyne reacts very slowly than alkene. मैंने आपको बताया था उसके 2 रीजन थे, एक तो सिमेट्रिकल सिलिंड्रिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन अल्काइन, और सेकेंड रीजन था कि अल्काइन के कार्बन इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं, जिससे उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है. एंड वी कैन से कि अल्काइंस एडिशन रिएक्शन में स्लो रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू अल्कीन. वापस से मैं बता रहा हूँ वंस अगेन, अल्काइंस रिएक्ट स्लोली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू अल्कीन. सो व्हेन यू ऐड अ, सपोज वी टेक दिस कंपाउंड विच हैज अ ट्रिपल बॉन्ड, विच हैज अ डबल बॉन्ड एंड 1 मोल ऑफ ब्रोमीन दिए. अब क्वेश्चन ये कि 1 मोल ऑफ ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा, डबल बॉन्ड पे ऐड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होगा. सो यू टू रिमेंबर कि द ब्रोमीन विल ऐड on the double bond, because double bond is more reactive than triple bond. So you get a structure like this, CH triple bond CH, CH2 single bond CH, Br single bond CH2 Br. ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब 98% यही प्रोडक्ट बनेगा. और अगर ब्रोमीन ये ऐड किया तो वो आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट हैलोजनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजन अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड. ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HX अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड. हमने डबल बॉन्ड में जब HX ऐड किया था,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, वहाँ पर अल्कल हैलाइड्स मिला थे। यहाँ पर हमको डाई हैलाइड्स मिलेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 मोल्स ऑफ HX आराम से ऐड हो सकते हैं विथ मार्कोनिकॉफ रूल। तो जनरल रिएक्शन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो H गोज टू वन कार्बन, X गोज टू अनदर कार्बन टू फॉर्म CH डबल बॉन्ड CX। ओके, नाउ when you add another HX, so you have to follow Markovnikov rule for the major product where the negative part of the reagent, that is X minus, goes to a carbon having less hydrogen or more substituted. तो H यहाँ पर चले जाएगा, so you get a structure CHHCXX, geminal dihalides मिल गया। सिंपल है, मार्कोनिक अप्लाई करना। अब जैसे मैं यहाँ HCl ऐड करूँ तो H goes to one carbon, Cl goes to another carbon, so you get a structure CH2 double bond CHCl. Now here you need to apply Markovnik for major product, the negative of the region goes to carbon having less hydrogen। तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो ऑब्वियसली नेगेटिव पार्ट लेस पे जाएगा, H जाएगा CH2 पे, तो you get a structure CH3 CH2Cl, sorry CHCl2। Now HBr ऐड करना है, प्रोपाइन खुद ही एक अनसिमेट्रिकल है तो फर्स्ट स्टेप में ही मार्कोनिक लगेगा, दैट नेगेटिव ऑफ द रीजन गोज टू कार्बन हैविंग लेस, तो C इज लेस हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर है ही नहीं, H गोज टू दिस CH, so you get a structure CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2। अगेन मार्कोनिक अप्लाई करो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन और मोर सब्स्टिट्यूटेड, सो इट इज CH3 CBr Br CH3 जेमिनल। पैरोक्साइड इफेक्ट वर्क करता है बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ HBr इफ यू रिमेंबर। चलो मैंने पैरोक्साइड डाल दिया तो एंटी मार्कोनिक, बेंजोइल पैरोक्साइड तो एंटी मार्कोनिक काम करेगा, मतलब द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू कार्बन हैविंग लेस और मोर, सो इट विल गोज टू मोर कार्बन, एंटी मार्कोनिक। H जाएगा C पे, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CHBr। अगेन पैरोक्साइड इफेक्ट, नेगेटिव ऑफ द रीजन गोज टू कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, तो Br इधर पे आ जाएगा, H इधर पे आ जाएगा, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 CH2 CHBr, दोनों टर्मिनल पे आ गए। और अगर ये एंटी मार्कोनिक फॉलो नहीं करता तो नॉन टर्मिनल सेंटर पे आते थे। सी दिस टू एग्जाम्पल। ओके, इफ यू वांट टू ऐड ओनली 1 मोल ऑफ HX, दैट इज HCl, व्हाट यू डू, यू पास एसिटिलीन या अल्काइन into a dilute HCl solution, conc नहीं लेना, dilute at 333-338 Kelvin in presence of mercurous ion Hg2+, sorry mercuric ion Hg2+, mercurous is Hg+, mercuric is Hg2+, so when you use Hg2+, only 1 mole of HCl can be added, H goes to one carbon, Cl goes to another to form CH2 double bond CHCl, vinyl chloride, but इसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगा because of mercurous ions। Okay, now very important point before moving ahead about diols. Diols means 2OH. Geminal diols means 2OH present on the same carbon atom and they are highly unstable। जब भी 2OH या 3OH एक ही कार्बन पे होंगे वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, स्पॉन्टेनियसली खुद से it will release water molecule, convert into either aldehyde, convert into ketone or convert into an acid। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डायोल लिया, देखो CH3 CH OH, लेकिन ये OH किधर पे है, टर्मिनल कार्बन पे है, टर्मिनल कार्बन पे अनस्टेबल हो गया डायोल बिकॉज एक ही कार्बन पे 2 OH है, तो वो क्या लूज करेगा स्टेबिलिटी के लिए, वाटर। कैसे, यहाँ से देखो OH माइनस निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस, और ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा, जैसे ही शिफ्ट हुआ इट फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड बन गया, एसिड अल्डिहाइड। समझो नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल मतलब टर्मिनल नहीं, सेंटर में कहीं पर है, बीच में कहीं पर है, लेकिन 2 OH एक ही कार्बन पे, तो अगेन अनस्टेबल, आपको वाटर निकालना ही पड़ेगा। यहाँ से आप OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, ये C और O के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 और H2 इज बीन रिमूव फ्रॉम। अब एक ही कार्बन पे 3 OH है, ट्राईऑल है, अगेन वाटर निकालो, देखो यहाँ से गया OH माइनस, यहाँ से H प्लस, ये पूरा बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O, और एक OH तो पहले से था, एसिड बन गया। तो जेमिनल ट्रायोल गिव्स एसिड, टर्मिनल जेमिनल डायोल विद अल्डिहाइड,
नॉन टर्मिनल डायोल्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि दिस इज नॉन टर्मिनल, एंड में नहीं होना चाहिए, विल गिव अ कीटोन। एंड टर्मिनल ट्रायोल, ट्रायोल सिर्फ टर्मिनल ही हो सकते हैं, गिव्स एसिड, रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। आपको याद होगा ये हम लोग ने अल्कीन्स में देखा था। इन केस ऑफ अल्कीन्स व्हेन यू ऐड कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट गिव्स एन अल्कोहल। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, देखते हैं। नाउ यू टेक अ ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, यू ऐड H2SO4 टू इट। तो आपको याद होगा H2SO4 हमने ऐड कैसा किया था, H प्लस गोज टू वन कार्बन, OSO3H goes to another carbon. So you get an intermediate CH double bond COSO3H। अभी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप, यस डबल बॉन्ड है तो H प्लस गोज टू वन कार्बन एंड OSO3H गोज टू अनदर कार्बन। बट रूल क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, तो मार्कोनिक यूज करना पड़ेगा। दैट फॉर मेजर प्रोडक्ट द नेगेटिव पार्ट गोज टू अ कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर जीरो हाइड्रोजन है, तो यू पुट योर लेस हाइड्रोजन, तो H प्लस ऑटोमेटिकली इधर जाएगा। सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CHH सिंगल बॉन्ड C OSO3H OSO3H। ओके, डाइसल्फेट कॉम्प्लेक्स बन गया, 2 मोल्स ऐड हुए H2SO4, क्योंकि ट्रिपल से आपने सिंगल में किया और सेकेंड्स में मार्कोनिक रूल लगाया। नो व्हाट यू डू, यू बॉयल इट बाय यूजिंग वाटर। तो वाटर से जब बॉयल करोगे देखो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। OSO3H गोज विद H, OSO3H गोज विद H, तो क्या निकल गया यहाँ से H2SO4। अच्छा, दोनों OSO3H की जगह पे कौन आ जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे, तो यू गेट अ स्ट्रक्चर CHHC OH OH। आपको याद है जेमिनल डायल अनस्टेबल, क्या लूज करेगा, वाटर। तो देखो यहाँ से निकल गया OH माइनस, बॉन्ड लेके यहाँ से क्या गया H प्लस, ये पूरा बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा। सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CHHC डबल बॉन्ड O माइनस H2। अब ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। एग्जाम्पल देके फाइंड करते हैं हम लोग। एसिटिलीन लिया, चलो फर्स्ट उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, H2SO4 HOSO3H प्लस माइनस, इट गोज टू वन कार्बन, दिस गोज टू दी अनदर कार्बन। यहाँ पर कोई मार्कोनिक अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सो यू गेट CH2 डबल बॉन्ड CH OSO3H। अब इसमें हम लोग एक H2SO4 ऐड कर देंगे, ये अभी तक सैचुरेशन हुआ नहीं है, बट दिस टाइम दिस बिकम्स अनसिमेट्रिकल, एक साइड 2 हाइड्रोजन, एक साइड हाइड्रोजन OSO3H है। सो व्हाट यू डू, यू अप्लाई मार्कोनिक ऑफ रूल दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, तो वो इधर आएगा, H प्लस इधर आ जाएगा। सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3CH OSO3H OSO3H इथाइल डाइहाइड्रोजन सल्फेट। अब क्या करना है, बॉईल करना है, किससे, वाटर से, HOH बॉईल इट। क्या निकल गया यहाँ से, H2SO4 H2SO4, दोनों OH किधर पे आएंगे, C पे। सो यू गेट अ स्ट्रक्चर, मतलब -2 मोल्स ऑफ H2SO4, यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3CH OH OH। अब ये तो डायल हो गया, यू हैव टू लूज अ वाटर मॉलिक्यूल, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ OH। ऑब्वियसली ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बन गया, इट विल लूज अ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से OH माइनस जाएगा, यहाँ से H प्लस, ये बॉन्ड बीच में शिफ्ट होगा। सो यू गेट फाइनल स्ट्रक्चर CH3CH डबल बॉन्ड एसिड एल्डिहाइड। तो इससे आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, समझ गए ना। जहाँ पर आपका H2SO4 जाएगा ना, वहाँ पर जहाँ पर भी जो कार्बन पे आपका H2SO4 में OSO3H जाएगा, वहीं पर ही डायोल बनेगा और वहीं पर ही डबल बॉन्ड O आएगा। रिमेंबर दैट, शॉर्टकट समझने के लिए। OSO3H जो कार्बन पे जा रहा है वही कार्बन पे डायोल बनता है और उसी पे ही डबल बॉन्ड O आता है। मतलब इस रिएक्शन को अगर फास्ट लिखना है तो मैं देखो कैसा लिख रहा हूँ, समझ लो, इस रिएक्शन डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना। ओके, तो यू रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ HOSO3H। पहले डिसाइड कर लो कि OSO3H कौन से कार्बन पे जाएगा। तो OSO3H गोज विद दी मार्कोनिक, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। तो मार्कोनिक क्या बोलता है, दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। तो
तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 है, तो ऑब्वियसली OSO3H यहीं कहीं जाएगा इस कार्बन पे, तो दूसरा भी इसी पे आएगा। फिर यही दोनों कार्बन पे डायॉल बनेंगे, क्योंकि आप वाटर से हीट करने वाले हो उसको, HOH। तो मतलब यही कार्बन पे 2 OH आएंगे, विल बी लूज अ वाटर मॉलिक्यूल, तो यही कार्बन पे क्या डेवलप होगा, डबल बॉन्ड हो। तो फाइनली इसका स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब यू कैन प्रिडिक्ट दिस स्ट्रक्चर डायरेक्टली। अब समझो मैंने ये लिखा CH2 या CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 सेम रिएजेंट। अब OSO3H किधर जाएगा, कार्बन हैविंग लेस इधर पे, तो डबल बॉन्ड भी इधर ही आएगा। तो फाइनली यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3, सबको सिंगल बॉन्ड कर दो, सिर्फ इसको डबल बॉन्ड CH2 CH3। इजीली आप रिएक्शन लिख सकते हैं वंस यू नो दी मेथड कि कैसा जा रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन ये कोई नॉर्मल एडिशन नहीं है, you need to add water in presence of H2SO4 and HgSO4 mercuric sulfate 1% at 343 aldehyde ketone बनेगा via tautomerism। let's take an example। ये लिया मैंने, आप डायरेक्टली वाटर ऐड कर दो, HOH, एरो पे मैंने लिख दिया है 40% H2SO4 1% HgSO4 343 केल्विन, प्लस माइनस सिमेट्रिकल है, H कहीं पर भी डालो OH कहीं पर भी डालो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH2 बराबर देखना भी डबल बॉन्ड CHOH, इनॉल बन गया, इन डबल बॉन्ड ऑल OH। नाउ दिस इनॉल विल अंडरगो प्रोसेस, सबको याद होगा, दैट इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे होगा, जो कार्बन पे याद रखना OH है उसके ऑपोजिट कार्बन पे पाई बॉन्ड को शिफ्ट करो, मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये पहला शिफ्ट होगा, जिसके वजह से ये कार्बन पे आ जाएगा डेफिशिएंसी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दो। फिर यहाँ से क्या रिलीज, ये दूसरा हो गया शिफ्ट। फिर यहाँ से H+ रिलीज होगा, तो ये H+ जाएगा नेगेटिव कार्बन पे, तो ये थर्ड शिफ्ट हो गया। और हाइड्रोजन कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। सो आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा फाइनली, CH3C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड। अब सपोज मैंने ये लिया प्रोपाइन, HOH ऐड करो, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 1% HgSO4। चलो अब नाउ दिस इज अनसिमेट्रिकल, तो मार्कोनिक लगाना ही पड़ेगा, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, तो H+ ऑटोमेटिकली यहाँ गया, इनॉल बना पहले, CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा OH। मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ करता, आपको बता दूंगा शॉर्टकट क्या है ये, OH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट शिफ्ट पाई बॉन्ड ऑपोजिट पे जाता है, जो OH है उसके ऑपोजिट कार्बन पे, डबल बॉन्ड पे इधर गया, फिर ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा, सेकेंड थर्ड इस पे जाएगा, सो टॉटोमेरिज्म एंड यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो दिस इज कॉल्ड एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जो मैंने टॉटोमेरिज्म के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। बट शॉर्टकट क्या है, जिस कार्बन पे OH जाता है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O बनता है। मतलब इफ आई मेक दिस स्ट्रक्चर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सिर्फ मैंने ऐसा लिख दिया, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट HOH वाटर 40% H2SO4 1% HgSO4 हीट। आप समझ जाओगे टॉटोमेरिक रिएक्शन है, तो वाटर कैसे ऐड कराओगे, सिंपल, डिसाइड करो, मार्कोनिक, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन OH माइनस गोज टू अ कार्बन हैविंग लेस, तो यहाँ नहीं जाएगा, वो सेकंड पे जाएगा, तो सेकंड पे ही डबल बॉन्ड O आएगा, तो यू गेट अ स्ट्रक्चर फाइनली CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। देखो ये कार्बन पे और ये सिंगल बॉन्ड से CH3, वेरी सिंपल। नो सी दिस एग्जाम्पल, इसको भी डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे हम लोग। कैसा कन्वर्ट करेंगे, HOH 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4, अभी प्लस माइनस मार्कोनिक अप्लाई। तो अब सर यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर कैसा डिसाइड करेंगे, तो सी
मार्कोनिक रूल क्या बोलता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन या मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो देखो यहाँ पर एक इथाइल है इस कार्बन पे, यहाँ पर मिथाइल है, तो ये जो कार्बन है इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो OH माइनस इधर ही जाएगा, मतलब टॉटोमेरिज्म जहाँ पर OH माइनस जाता है वहाँ पर डबल बॉन्ड O बनता है, C डबल बॉन्ड O बनता है, तो इसी पार्ट पे बनेगा C डबल बॉन्ड O। तो नाउ द फाइनल स्ट्रक्चर बिकम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर 2 कार्बन CH2 CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। किसी ने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O डाला सेकेंड कार्बन पे, तो वो माइनर बनेगा, यू हैव टू मेक अ मेजर प्रोडक्ट। तो जिस कार्बन पे OH जाता है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O बनता है, वेरी सिंपल। ओके गाइस।